ایون دو پروفٹ محمد اور جیزس کرائسٹ ہسٹوریکل فگرز ہیں، لیکن جو میریکلز کی کہانیاں ان سے اٹیچ کری جاتی ہیں وہ ہسٹوریکل نہیں ہیں۔ نہ تو سائنٹسٹ نہ ہی ہسٹورینس انہیں سچ مانتے ہیں، یا پھر پروفٹ محمد کی کہانی کی کیسے انہوں نے چاند کو اپنی تلوار سے 2 حصوں میں بانٹ دی۔ یہ سب مائتھولوجیکل کہانیاں ہیں، سائنس اور ہسٹری میں ان کی کوئی جگہ نہیں۔ السلام علیکم دوستو، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ماضی میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں یا انبیاء کرام کے جتنے بھی معجزے تھے وہ بالکل سچے تھے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 بڑے معجزے شامل تھے۔ ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور دوسرا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے جب لاٹھی سمندر پہ ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا اور اس میں راستہ بن گیا تھا۔ اس طرح سے اور بھی بہت سارے انبیاء کرام کے معجزے ہیں، جس میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ شامل ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ اس بارے میں دھرو راٹھی، جو کہ ایک انڈین یوٹیوبر ہے، اس نے حال ہی میں ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے تو وہ صرف کہانی ہے، جس کا تاریخ اور سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے جواب میں ہمارا ایک مسلمان بھائی زید پٹیل، اس نے کافی زبردست جواب دیا دھرو راٹھی کا، جس میں وہ کافی خوبصورتی سے اس معجزے کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہ پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ایون دو پروفٹ محمد اور جیزس کرائسٹ ہسٹوریکل فگرز ہیں، لیکن جو میریکلز کی کہانیاں ان سے اٹیچ کری جاتی ہیں وہ ہسٹوریکل نہیں ہیں۔ نہ تو سائنٹسٹ نہ ہی ہسٹورینس انہیں سچ مانتے ہیں، یا پھر پروفٹ محمد کی کہانی کی کیسے انہوں نے چاند کو اپنی تلوار سے 2 حصوں میں بانٹ دی۔ یہ سب مائتھولوجیکل کہانیاں ہیں، سائنس اور ہسٹری میں ان کی کوئی جگہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوبر دھرو راٹھی نے اپنی ایک ریسنٹ ویڈیو میں کلیم کیا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے یہ مائتھولوجیکل کہانی ہے، سائنس اور تاریخ ہسٹری میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آئیے یہ سوال ہم فیس ٹو فیس دیکھتے ہیں، کیونکہ بہت لوگ اس سوال کو پوچھتے ہیں، تو آئیے آج اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جواب 6 پوائنٹس کی شکل میں رکھنا چاہتا ہوں، 3 ہسٹوریکل اور اس کے آگے کے 3 سائنٹیفک، اور لاسٹ میں بہت اہم بات آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ آئیے اس چیز کی ہم انالیسس کریں۔ سب سے پہلے ایک بات تو کلیئر کر دیجئے کہ اپنی تلوار سے 2 ٹکڑے کیے چاند کے، یہ تو کہیں نہیں دیا ہے۔ اور جو حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا ہے۔ قرآن میں سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 1 to 3 میں آتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہونا تھا کہ چاند کو پھٹنا تھا، اور یہ ڈے آف ججمنٹ جو مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جس میں ہم سب کا حساب ہوگا، یہ اس کے پروفز میں سے ایک پروف ہے۔ وانشق القمر اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور جب یہ ہوا تو اس چیز کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا سحر مستمر، جو ڈینائرز تھے، جو انکار کرنے والے، انہوں نے کہا یہ تو ایک جادو ہے جو کنٹینیوسلی ہو رہا ہے ہماری آنکھوں پر۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری آنکھوں پہ جیسے کہ ایک جادو ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ہسٹوریکل ایویڈنس میں سب سے پہلی بات یہ بیسس کو کوشچن کرنا چاہتا ہوں ایک مثال کے ساتھ۔ الیگزینڈر دی گریٹ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے بڑے بادشاہ تھے، تقریباً جیزس کرائسٹ سے 350 سال پہلے جیے، اور کتنے بڑے علاقے میں انہوں نے حکومت کی زندگی کے اتنے کم سالوں میں۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے، یہ سب ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو اولڈسٹ ہسٹوریکل ریکارڈ کون سے ہیں الیگزینڈر دی گریٹ کے بارے میں، جن کی زندگی کہتے ہیں کہ بہت ویل ڈاکیومنٹڈ ہے؟ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے آئی وٹنسز تھے، کس نے یہ بات بیان کی؟ تو آپ کے پاس جو اولڈسٹ ریکارڈز ہیں وہ الیگزینڈر کی موت کے 275 سال بعد، 375 سال بعد، 425 سال بعد، 525 سال بعد، یہ اولڈسٹ ریکارڈز ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال ہمارے پاس ہے 7 ونڈرز آف دا اینشنٹ ورلڈ، کہ پرانی دنیا کی جو 7 عجوبے، اس میں سے صرف ایک آج موجود ہے اور 6 موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی مانا جاتا ہے کہ تھے، کچھ ریکارڈز کے بیسس پہ، ہسٹوریکل ریکارڈز۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی ویل ڈاکیومنٹڈ ہے وتھ چینز آف نریشن کہ ان کے زمانے میں ہونے والے ایونٹس کے اندر ہم آپ کو دے سکتے ہیں کہ کوئی چیز ہوئی، اس کے آئی وٹنسز کون تھے، اس کی پوری چین آف نریشن، یہاں تک کہ جو ہسٹوریکل ریکارڈ جو حدیث بک کے اندر موجود ہے، وہ لکھنے سے پہلے تک جو چین آف نریشن ہے، وہ چین آف نریشن کے اندر ہر سنگل راوی کے بارے میں ہم آپ کو اس کی پوری بایوگرافی دے سکتے ہیں۔
वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं कि वो कैसे थे अपनी ईमानदारी में, अपनी सच्चाई में, अपनी इंटेग्रिटी में, वो कैसे थे अपनी हिफाजत में, प्रिजर्वेशन में, बातें पहुंचाने में, जिसके बारे में क्रॉस एनालिसिस बाद में भी की हुई और जिसकी वजह से रेटिंग और ग्रेडिंग के साथ में हम बता सकते हैं कि ये ऑथेंटिक चेन ऑफ नरेशन है या वीक या फैब्रिकेटेड है। यानी कि आप देख रहे हैं कि पूरी चीजें डॉक्यूमेंटेड है। और चांद के 2 टुकड़े होने के बारे में बात करेंगे तो उसकी हदीस तो हम देखते हैं, स्कॉलर्स बताते हैं ये मुतवातिर दर्जे की। मुतवातिर हदीस किसको कहते हैं, कभी गूगल करके चेक करिए। ये जो आप देख रहे हैं ये टिपिकली एक मुतवातिर हदीस की चेन ऑफ नरेशन ऐसी दिखती है कि उसे इतने सारे नरेटर्स, रावियों ने बयान किया है, हर लेवल पे इतने सारे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल कि सब मिलकर किसी झूठ पर इत्तेफाक करें। अब चांद के 2 टुकड़े होने वाली हदीस के ताल्लुक से अगर आप देखो तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु, जिनकी हदीस बुखारी में है, जो वहां आई विटनेस थे, उनके अलावा अगर आप देखोगे तो जुबैर बिन मुतिम रदियल्लाहु अन्हु, जो उस जमाने के अंदर नॉन मुस्लिम थे, उन्होंने बाद में जाके इस्लाम कबूल किया, वो बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था। उनके अलावा आप देखोगे हुदैफा बिन यमान की हदीस मौजूद है, अनस बिन मालिक की हदीस मौजूद है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से सेकेंडरी हदीस मौजूद है, अब्दुल्लाह इब्न उमर के ताल्लुक से मौजूद है। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे नॉन मुस्लिम्स उस जमाने के जो कुफ्फार थे, मुशरिक थे, जो उनके बल्कि सरदार थे, उनके बारे में हमें मिलता है कि उन्होंने भी इंक्वायरी किया था दूसरों से कि हमने ऐसा ऐसा होते देखा, कि तुम लोगों ने भी देखा। उसके बारे में नरेशन इमाम इब्न कसीर बिदायतुल मुज्तहिद में जमा करते हैं और उनके ताल्लुक से काजी इयाज भी जिक्र करते हैं। पॉइंट नंबर 2, अब सवाल यह उठता है कि इतना बड़ा इवेंट जब हुआ तो फिर हमें बहुत सारे दुनिया भर से नरेशंस क्यों नहीं मिलते। सबसे पहली बात यह कि जिस वक्त में रात में जब चांद स्प्लिट हुआ उस वक्त पर दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में दिन था। कहां से चांद दिखेगा, चांद स्प्लिट होते हुए कहां से दिखेगा। और जो हिस्से में रात थी, इंडिया मिसाल के तौर पर, वहां के ताल्लुक से मैं आपको एक रिपोर्ट बताने वाला हूं। अब आप खुद एक बात को समझिए कि कोई ऐसा सोशल मीडिया में उस जमाने के ऐलान नहीं हुआ था कि इतने बजे जाके चांद स्प्लिट होने वाला है। चांद स्प्लिट होने के बाद कुछ ही देर में, कुछ ही वक्त के अंदर फिर से ज्वाइन भी हो गया। और किसी ने अगर देखा भी हो तो हो सकता है वो सोचेगा कि मैंने क्या इमेजिन किया। और कोई जाकर अगर बयान करे तो उसे ये लगेगा कि मैं किसी को बताऊंगा तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसी वजह से कायदा है, द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। किसी चीज की अगर दलील कहीं पर ना हो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी दलील है ही नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखो तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो चाइना में मौजूद है जमाने से, लेकिन मार्को पोलो ने जब अपना सफरनामा पूरा रिकॉर्ड किया, उस सफरनामे में कहीं भी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जिक्र नहीं है। उसका मतलब यह नहीं होता कि उस जमाने के अंदर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना था ही नहीं। पॉइंट नंबर 3, चेरामन पेरुमल नाम के एक नॉन मुस्लिम बादशाह ने चांद को इस तरह से स्प्लिट होते हुए देखा। इस चीज का जिक्र हम देखते हैं हिस्टोरियन MGS नारायण ने अपनी किताब में जिक्र किया है और उन्होंने ब्राह्मणिकल रिकॉर्ड्स केरोल पट्टी को कोट करते हुए बताया है कि हमारे पास डाउट करने का रीजन नहीं है कि ऐसा वाकया नहीं हुआ। उसी तरह सेबेस्टियन नाम के एक हिस्टोरियन ने भी ये बात को जिक्र किया है और कई सारे और हिस्टोरियंस ने भी इस बात को जिक्र किया। और केरला के अंदर ये एक बहुत फेमस स्टोरी है, बल्कि चेरामन पेरुमल की कायम की हुई मस्जिद उस जमाने की मौजूद है। उन्होंने चांद को देखा था। कुछ स्टोरीज के अंदर आता है कि वो खुद गए थे या उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और इस तरह से ये मस्जिद उनकी बनी थी, जिसके बारे में हम ये देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्वीट्स में भी जिक्र किया। उसका एक गोल्डन रेप्लिका बना करके सऊदी के बादशाह को भी गिफ्ट किया। तो इस तरह का आई विटनेस रिकॉर्ड हम लोगों को मिल रहा है। इस्लामिक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अंदर भी इस तरह की मैच होने वाली चीजें मिलती है जो इस चीज को और स्ट्रेंथ दे रही है। आइए अब हम साइंटिफिक प्रूफ्स की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 4 कि चांद के ऊपर जो रिलेज मिले हैं, ऐसी दरारें जो मिली है, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देख सकते हैं, ये नासा की वेबसाइट से रीमा एरिडियस जो 300 किलोमीटर लंबी दरार है इस तरह की, ये दरार क्या चीज इंडिकेट कर रही है? ये दरार और वैलिस एल्पिस जो तकरीबन 166 किलोमीटर बड़ी है, ये दरार भी एक हो सकती है निशानी जो उस चीज की तरफ इशारा कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पे हवाई के अंदर जो लावा चैनल्स है जो एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये इस तरह की दरारें जो एक तरह से फॉर्म हो रही है, क्या ये चांद के 2 टुकड़े होने के बाद मिलने की वजह से बनी थी? हो सकता है ये उसके प्रूफ्स में से प्रूफ हो। लेकिन मैं इस बात से एक बात वाजे कर देता हूं कि कुछ लोग जो सोशल मीडिया में क्लेम करते हैं कि नासा ने साबित कर दिया है कि चांद के 2 टुकड़े हुए थे, तो नासा ने ऐसा कुछ साबित नहीं किया है। जो नासा ने खुद भी डिनाई किया है कि उसने ऐसा कुछ साबित नहीं किया है। नासा ने सिर्फ इतना रिपोर्ट किया है कि चांद पर इस तरह की रिलेज दरारें मिली है। वो क्या साबित कर रही है वो आगे जाकर हम देखेंगे। अभी तो वो अननोन है कि इसकी वजह क्या थी। आइए पॉइंट नंबर 5 की तरफ आते हैं। चांद के ऊपर लोबेट स्कार्प्स मिले। लोबेट स्कार्प्स क्या है? मीलों के मील इस तरह से जमीन उठी हुई पूरी लाइन से
स्पेस में से देखा जाए तो इस तरह से दिखाई देता है। और इस चीज के बारे में साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर में इसकी वजह क्या है। हो सकता है इसकी वजह यह हो कि चांद के 2 टुकड़े होकर जब मिले हैं तो इस तरह से उसकी एक निशानी यहां आज भी देखने वालों के लिए बाकी है। पॉइंट नंबर 6, चांद के 2 साइड्स है और 2 साइड्स दोनों के दोनों बिल्कुल अलग है। जो साइड का रुख हमारी तरफ होता है वो एक ही साइड होती है, यानी आप जब भी चांद को देख रहे हो आप चांद की एक ही साइड देख रहे हो और एक साइड है जो उसके पीछे है जिसको हम कभी नहीं देखते हैं। जब देखा गया, उसे ऑब्जर्व किया गया तो पाया गया कि चांद की वो साइड इस साइड से बिल्कुल अलग है। इसकी क्या वजह है? साइंटिस्ट ने अलग अलग रीजंस दिया है। एक रीजन में ये दिया है कि हो सकता है एक दूसरा चांद आकर के मिला है और इस तरह से 2 चांद मिल करके ये हमारा चांद बना है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 चांद मिलकर के एक चांद बने? क्या ऐसा पॉसिबल है 2 मिलकर बने हो? तो ये चीज के अंदर हम एक मिसाल देखते हैं सैटर्न का, जो 3rd बिगेस्ट चांद है। सैटर्न के कई चांद है, उसमें से जो 3rd बिगेस्ट है लैपिटस। तो लैपिटस को जब ऑब्जर्व किया गया, और आप देख रहे हो ये फोटोज, ये कोई फोटोशॉप नहीं है, ये खुद नासा की वेबसाइट का लिंक है, आप जाके खुद देख सकते हैं। तो ये सैटर्न के चांद के अंदर जो पूरी दरार है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि एक दूसरा चांद आकर के मिला था और उसकी वजह से ये एक तरह की दरार मौजूद है। मेरे 6 पॉइंट्स पूरे हुए, लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि जो चांद के 2 टुकड़े हुए ये एक मिरेकल है। और मिरेकल कहते किसे हैं? एक ऐसी चीज जो नॉर्मली नहीं होती है। अगर आप इस बात को समझ सकते हो कि कायनात को, इस बड़ी यूनिवर्स को बनाने वाला क्रिएटर है, जिसने जमीन को बनाया, इस आसमान को बनाया, हमें बनाया, हमारे बॉडी के अंदर एक एक सिस्टम को बनाया। हमारी बॉडी की छोटी सी सेल होती है, हर लिविंग क्रीचर की जो सेल होती है उसके अंदर एक तरह की सिटी जितना सिस्टम होता है। हमारे डीएनए के अंदर मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप इस चीज को मानते हैं कि बनाने वाला क्रिएटर है, जो समझने के लिए इतने सारे प्रूफ्स है, तो ये बात समझना मुश्किल नहीं है कि वो क्रिएटर अपने बंदों को निशानी, कयामत के आने की निशानी के तौर पर एक ऐसी निशानी, एक साइन भेजे। ये समझना मुश्किल नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे मैसेंजर थे, इसके कई सारे प्रूफ्स मैं बता चुका हूं अपनी वीडियो वाह इस्लाम 100 रीजंस में। और कुरान अल्लाह की किताब है, इसके कई सारे प्रूफ्स है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप ये वीडियो जरूर देखें। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि कुरान अल्लाह की किताब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, फिर एक दिन आपको पता चलता है चांद के बारे में, तो ये चीज समझना फिर मुश्किल नहीं होगा इस कॉन्टेक्स्ट को देखकर कि इस्लाम ने जो जिंदगी का मकसद बताया, जो क्रिएटर का इंट्रोडक्शन बताया, जो जिंदगी के कई सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस के आंसर्स बताया, तो वो चीज जानने के बाद ये चीज समझना मुश्किल नहीं है कि क्रिएटर ने हम लोगों को सही रास्ता बताने के लिए एक मिरेकल, एक मौजज़ा भेजा जो कयामत के आने की निशानी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, ये था ज़ैद पटेल साहब का ध्रुव राठी को जवाब। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसने एक्सप्लेन किया और सबूत दिया इस बात की कि जो भी मौजज़ा हुआ था, जब चांद 2 टुकड़े हुआ था, तो वो बिल्कुल सच है, उसमें कोई शक नहीं है। और देखा जाए तो ध्रुव राठी कोई बुरा बंदा नहीं है, अच्छा बंदा है, काफ़ी ज़बरदस्त यूट्यूबर है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। लेकिन उसने इस्लाम के बारे में इससे पहले भी एक इब्राहिमिक रिलीजन्स के बारे में एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की थी जो कहीं पे भी इस्लामिक हिस्ट्री में नहीं लिखी हुई है। तो मेरे ख़्याल से ध्रुव राठी को इस तरह की वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, उसको उस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। वो काफ़ी रिसर्च करते हैं उसकी वीडियो पे। लेकिन इस्लामिक या रिलीजन के हिसाब से जब वो वीडियो बनाते हैं तो उस पर इतना रिसर्च नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की वीडियो ध्रुव राठी साहब को या कोई भी और हो जो नॉन मुस्लिम हो, उसको इस तरह की वीडियो नहीं बनानी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो बनाता है तो उसको चाहिए कि उस पर पहले रिसर्च करे। जब जिस रिलीजन पे वो वीडियो बना रहे, उस रिलीजन के कोई रिलीजियस बंदा जो जैसे हमारे मुसलमानों में मुफ्ती आलिम होते हैं, उस तरह के रिलीजियस बंदे से मशवरा कर लेना चाहिए उसको, और उससे पूछ लेना चाहिए उस बारे में, और उस बारे में जानना चाहिए उसको। फिर उसके बाद अगर वो वीडियो बनाए तो मेरे ख्याल से वो फिर बेहतर बनेगी। बाकी आप सब लोगों का इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक ऐसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।